Let's start with the derivation of the formula of equation of motion, the C part of the chapter Motion in One Dimension. I have taken here a velocity time graph which the body starts at point A with an initial velocity u and then accelerates uniformly to attain a velocity v when it had reached B in time t. Now using this graph, we will be deriving the equations of motion. So the information about the graph which I said is written here. We will begin with deriving the formula, first one by using the acceleration concept. So we have studied here that acceleration of the body will be the slope of line AB. The slope of this line AB will give us the acceleration, and then slope of the line we get by dividing the triangle formed by that line, and in that right angle triangle dividing the perpendicular with the base. So perpendicular is BE part and base is EE part. So dividing this perpendicular with this base AE, we are going to get the acceleration. So this BE part is same as this AC. So I replace it with AC, and this AE part is the same as OD. So now acceleration, this AC can be written as OC minus OA. This is written and then divided by that AE which we have already related as OD. So now we will substitute the value. You can see here this O to C is V minus and O to A is U divided by OD is the time T. So I get this A is equals to V minus U by T, and then cross multiply it over here. AT is equals to V minus U. Now minus U can be taken this side and it will result in getting the formula as V is equals to U plus AT. This is our first formula of equation of motion. Now we will proceed to look into the second one. Now going to derive the second equation. Here we will be taking the help of that displacement is equal to the area of the figure formed by this line AB and the time axis. So I will write here this area of trapezium that is OABD. OABD. अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रेपेजियम जो है इसका एरिया को दो पार्ट में बांट देंगे, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAED. तो ये ला रेक्टेंगल का एरिया आया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE. तो अब S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब लेंगे तो OD उसका हम ले लिए हैं लेंथ को और ब्रेथ को ले लेंगे OA प्लस ट्रायंगल का एरिया के लिए हाफ इंटू बेस है AE और इंटू हाइट है BE. तो S इक्वल्स टू OD पार्ट क्या है T है इंटू OA का वैल्यू क्या है U है प्लस हाफ इंटू AE अभी अभी हम लोग देखें कि AE इज इक्वल्स टू OD, तो लिखे OD यहां पर, और ये जो BE है दैट इज इक्वल्स टू AC. तो S इज इक्वल्स टू 2 इंटू U को लिखेंगे UT प्लस हाफ ये जो OD है इसको हम लिखेंगे T इंटू AC का वैल्यू अभी हम लोग पिछले बार कैलकुलेट किया तो दैट इज V माइनस U. तो इसको हम लिखेंगे V माइनस U. ठीक है, तो फिर S इज इक्वल्स टू UT हो गया प्लस हम लोग अभी अभी फॉर्मूला जो पहला वाला डिराइव किए थे उसमें हम लोग को मिला था V इज इक्वल्स टू U प्लस AT. तो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT मिला था. इस V इक्वल्स टू U प्लस AT से
हम लोग को मिलेगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80। इस v माइनस यू इक्वल टू 80 को यहाँ पुट करेंगे तो हाफ इंटू 2 इंटू 80। तो अब हमको मिलेगा s इज इक्वल्स टू यू प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो हाफ a t स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया है दूसरा फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन का डिराइव। अब हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे थर्ड वाला को। अब देखने जाते हैं कि थर्ड वाला का डेरिवेशन कैसे होगा। उसका भी स्टार्टिंग सेकेंड वाला के जैसे ही होगा। तो पहले हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। अब जैसे पिछले बार हम लोग ब्रेक कर दिए उसको रेक्टेंगल और ट्रायंगल में, अब नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपीजियम का पैरेलल साइड्स ओ ए और बी डी है, तो यहाँ लिखेंगे ओ ए प्लस बी डी और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया ओ डी। हाफ लिखे इंटू ओ ए को देखो u है प्लस बी डी पार्ट इज सेम एज ओ सी जिसका वैल्यू v है इंटू ओ डी जो है वो t है। ठीक है, अब s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू u प्लस v को लिखे। अब ये t को हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला देख चुके हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो इससे मिलेगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से t मिल जाएगा v माइनस यू बाई ए। तो हम लोग t का बदले में v माइनस यू बाई ए पुट करो, इसको ब्रैकेट में दो। s इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर 2 इंटू ए 2a हो जाएगा। अब इसको देखो क्या है u प्लस वी और v माइनस यू, मतलब इसको हम v प्लस यू ले सकते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी का लगेगा v प्लस यू, v माइनस यू मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब हमको मिलेगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। माइनस यू स्क्वायर को 2s की तरफ में ला के लिखेंगे तो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये मेरा थर्ड इक्वेशन डिराइव हो गया है। ठीक है, इसमें और एक चीज को ध्यान देने का है कि ये जो हम लोग को आया था लाइन, इससे हम लोग एक रिजल्ट और लिख सकते हैं जो हम लोग को न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। दैट इज, इसको हम लिख रहे हैं u प्लस वी बाई 2 और इंटू टी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमको सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करके भी मिलता है। तो हमको ये भी फॉर्मूला याद रखना है। तो हम लोग न्यूमेरिकल करते समय ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, फिर बाकी जो दो हम लोग पहले डिराइव कर दिए उसको भी हम लिख रहे हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग को ये फॉर्मूला सब दरकार पड़ेगा जब भी बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा। अगर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं रहता है तो हम लोग स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम ही यूज करके निकालेंगे। तो ये चार फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो। हम लोग अब न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज होगा। तो हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी u0 होगा विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ यूनिफॉर्म है और वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड। डिस्टेंस निकालना है तो हमेशा आदत डालो, एक बार फॉर्मूला लिख लो एक जगह में ताकि याद कर लो उसको, वो यूज जो होगा, और फिर गिवन वैल्यूज को लिखो। तो हम न्यूमेरिकल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले u इक्वल्स टू 0 हो गया, फिर जाके एक्सेलरेशन जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर टाइम जो दिया हुआ है, टाइम इज गिवन एज 2 सेकेंड्स। तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, s निकालना है। तो रिलेट करो कौन कौन फॉर्मूला है जिसमें s, u, a और t आता है।
तो वो फॉर्मूला पता चल जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है, s निकालना है उसको लिखो, u 0 है, टाइम 2 है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 है और टाइम 2 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू, ये तो पार्ट 0 हो गया, नहीं लिखो, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर है 4, तो 4 मीटर आंसर हो गया इसका। अब चलो न्यूमेरिकल नंबर 2 में। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में बोल रहा है बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो u का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है एंड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है। तो पहले गिवन वैल्यूज को लिखो, u का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। तो फिर u, a और t और s किस में आता है, सेम फॉर्मूला, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू u का वैल्यू है 10, टाइम है 5 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 5 और टाइम का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 50 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 हो गया 125 बाई 2, ये 50 लिखे हम पहले, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 62.5 आया, ऐड कर दो 2.5 और 6 और 5 11 हो गया, 112.5 मीटर आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को देखने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है समझो पहले। अ व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, इट्स velocity at any instant is 30 km per hour. After 2 seconds, it is 33.6 km per hour, and after further 2 seconds, it is 37.2 km per hour. Find the acceleration of the vehicle in meter per second square. तो उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन निकालना है। इज द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म पूछा है। तो 2 पार्ट है यहाँ पर 2-2 सेकेंड का, तो दोनों को इंडिविजुअली एक एक बार हम लोग को देखना होगा। तो इसको हम सबसे पहले लिख रहे हैं केस 1 बोल देंगे। तो केस 1 में हम लोग का स्टार्टिंग का वेलोसिटी u दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लिखेंगे 30 इंटू 5/18, तो 6 3 ज़ा 6 5 ज़ा, तो ये हमको वैल्यू मिल गया 25/3 मीटर पर सेकेंड, ये u मिला। फिर हमको v दिया हुआ है 33.6 किलोमीटर पर आवर, तो अब उसको हम सीधा चेंज करने जाएंगे 5/18, 6 3 ज़ा काटो, 6 5 ज़ा 30, तो फिर जा कर के 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 6 ज़ा 30, तो 0 के साथ तो हट जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 28/3 मीटर पर सेकेंड आ गया ये। अब हम निकालने जाएंगे एक्सेलरेशन इस पार्ट के लिए, तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी आगे यूज़ हो चुका है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी फर्स्ट एक्सरसाइज में किए हम लोग, तो उसी को अप्लाई किए। तो यहाँ पर v है 28/3 माइनस व्यू है 25/3 और टाइम जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। अब ये नंबर देखो 28/3 और 25/3, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर 28 माइनस 25 सीधा सब्ट्रैक्ट होके 3/3 आ जाएगा। सो दैट इज 3/3 और 2, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 1/2 बचेगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम लोग केस 2 लेते हैं। केस 2 में स्टार्टिंग का वेलोसिटी हो जाएगा 33.6 किलोमीटर पर आवर, तो इसको ऑलरेडी हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। u आया था 28/3 ले लेंगे मीटर पर सेकेंड। अब v जो है वो हम लोग को दिया हुआ है 37.2, तो उसको भी कन्वर्ट करो इंटू 5/18 करके, 6 3 ज़ा 6 6 ज़ा 36 डेसिमल, 6 2 ज़ा
अब 5 इंटू 2 10 होगा, तो 10 का जो 0 आ गया और डेसिमल से हट जाएगा, 5 6 30 और 131/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इस पार्ट का एक्सेलरेशन निकालो, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो बाई टी को पहले लिख दिए, v है तुम्हारा 31/3 माइनस u है 28/3। फिर इसको माइनस करो, 31 माइनस 28 हो जाएगा 3/3/2, 3 कट जाएगा, 1/2 बचा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया इसका एक्सेलरेशन। पहला केस और सेकेंड केस का एक्सेलरेशन सेम है, तो हम लोग से पूछा था एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये खत्म हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, तो u 0 है। ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a का वैल्यू हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी acquired and the distance traveled in 5 seconds, तो इसका मतलब टाइम का वैल्यू हो गया है 5 सेकेंड्स। तो अब हम लोग को पहले v निकालने बोला है, वेलोसिटी एक्वायर्ड, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at यूज कर लो। तो u का वैल्यू 0 है, प्लस a का वैल्यू 2 है और t का वैल्यू 5 है, तो ये हमको मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया उसका v का वैल्यू। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का वैल्यू 0 है इंटू 5 प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू 2 और टाइम का वैल्यू है 5 का स्क्वायर। a तो 0 हो गया, a 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 का स्क्वायर 25 मीटर आंसर हो गया। तो ये दोनों थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल इस वे से करना है। Now let us take a look at numerical number 5. It says a bullet initially moving with a velocity of 20 meter per second strikes a target and comes to rest. This rest is important. Rest here means final velocity is 0. After penetrating a distance of 10 centimeter, मतलब डिस्प्ले उसमें कितना डिस्टेंस गया, वो 10 सेंटीमीटर गया। कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉस्ड बाय द टारगेट, तो टारगेट उसका वेलोसिटी को कम किया, मतलब रिटार्डेशन हुआ, वो रिटार्डेशन निकालना है। तो पहले गिवन पार्ट में हम लोग को दिया हुआ है नंबर 5, गिवन पार्ट में दिया है u इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। फिर हम लोग को रेस्ट में आ गया बोल के v 0 पता है, और फिर डिस्टेंस दैट इज डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर है, तो उसको 10/100 मीटर करना जरूरी है। तो फॉर्मूला में देख लो, अभी हमको निकालना है रिटार्डेशन मतलब a का वैल्यू, तो कौन फॉर्मूला में u, v, s और a आएगा, तो वो फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v फाइनली 0 है, 0 का स्क्वायर, u 20 था, 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 10/100। a यहाँ पर 0 काट दो, a इसको 2 से 5 टाइम्स कट गया, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 इधर आके -400 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a/5। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर -400 इंटू 5 इज इक्वल्स टू a, तो a का वैल्यू आ गया -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन गौर करना है, यहाँ पर हम लोगों को रिटार्डेशन पूछा है, तो ये एक्सेलरेशन निकला है, तो हम लोग को मेंशन करना है रिटार्डेशन। तो जब हम लोग रिटार्डेशन वर्ड लिखेंगे तो अब माइनस नहीं लिखना है, 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल 5th का सोल्यूशन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, अ ट्रेन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो u दिया है 20, ब्रॉट टू रेस्ट मतलब v है 0 इन 5 सेकेंड्स, और टाइम दिया हुआ है, कैलकुलेट द रिटार्डेशन पूछ रहा है। तो इसका सल्यूशन देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे u इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, फिर v हम लोगों को 0 दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो निकालना है a, तो कौन फॉर्मूला है जिसमें u, v, t और a आएगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at।
तो v के जगह में हम 0 लिखेंगे, u के जगह में 20, a के निकालना है और टाइम को लिखेंगे 5। तो -20 इज इक्वल्स टू a इंटू 5, तो a इज इक्वल्स टू -20/5 इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर भी रिटार्डेशन पूछा है, तो अब रिटार्डेशन लिखो, रिमूव द माइनस साइन एंड राइट इट। तो रिटार्डेशन विल बिकम इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी न्यूमेरिकल हो गया। इस टॉपिक का न्यूमेरिकल इसी तरह से है, फॉर्मूला याद रखो, सही कन्वर्शन करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, रिजल्ट निकल जाएगा। Now let's see what this numerical number 7 has to tell us. A train travels with a speed of 60 km per hour from station A to station B and then comes back with speed 80 km per hour from station B to station A. Find the average speed of it and also the average velocity of the train. Here you have to note here that the distance is not given, so you will have to assume the distance. And regarding average velocity, you know that it is starting from station A going to B and coming back to A. It means displacement is 0, so average velocity will be coming 0 here. So let us begin by assuming there. Let the distance between A and B equals to x kilometer. So now time taken to go, so that is the time taken to go from A to B, that is I am writing it as AB. So we know time is distance by speed. So that time AB, distance we have taken as x and the speed of going is 60. So x by 60 becomes the time to go. Now time to return back, that is from B to A, the same formula to be used, x by 80. So now we know the time for both the case. तो अब total time find करो। x by 60 plus x by 80, तो ये टाइम आ जाएगा, LCM आएगा 240, 240 को 60 से डिवाइड करो 4x और 80 से डिवाइड करो 3x, तो ये हो गया 7x by 240। अब हम लोग एवरेज स्पीड will be total distance by the total time. तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का गया था x, आया था x, तो x प्लस x और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आया 7x बाई 240, तो ये मिल गया हमको 2x बाई 7x और ये 240 चल गया ऊपर, तो x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो करके हमको मिलेगा मल्टीप्लाई करके हम लोग को 480 बाई 7। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 6 42 हो गया, तो 6 बचा, 60 हुआ, 7 8 56 हुआ, डेसिमल दे दो, 56 हुआ तो 4 बचा, 40 हुआ, 7 5 35, 5 बचा, 50 हुआ, 7 7 49। तो 2 प्लेस तक ही हम लोग छोड़ेंगे और यूनिट लिखो, यूनिट लिखने के लिए नहीं भूलना किलोमीटर पर आवर। अब और एक चीज यहां पर पूछा था सेकंड में, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो यहां पर क्योंकि वो ए से बी में गया और बी से वापस ए में आ गया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया बाय द टोटल टाइम जो भी होगा, ठीक है, तो ये आ गया 0 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बन गया। इसमें यही ध्यान देने का है कि एवरेज स्पीड निकालेगा तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके ही करना है। न्यूमेरिकल नंबर 8,
अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है, किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा. इट इज ब्रॉट टू स्टॉप बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स. अब स्टॉप हो गया मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, विच प्रोड्यूसेस अ रिटार्डेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. याद रखना है रिटार्डेशन दिया है तो ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा तो नेगेटिव ऑफ 0.5 पुट करना होगा. फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स एंड सेकेंड वन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट. मतलब v निकालना है 10 सेकेंड के बाद और टाइम निकालना है जब वो रुक गया पूरा. ठीक है, तो पहले जो जो इंफॉर्मेशन दिया उसको लिखते हैं. u इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 करो. 18 5 जा 90 होगा तो ये 25 मीटर पर सेकेंड हो गया. फिर दूसरा इंफॉर्मेशन हमको, जब वो पूरा स्टॉप हो रहा है तो वो वेलोसिटी जीरो है, ये यूज होगा सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में नहीं होगा. फर्स्ट पार्ट का v निकालना है 10 सेकेंड के बाद. ठीक है, और a का वैल्यू जो दिया है a लिख रहा है बोल के -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया. अब पहला पार्ट को सॉल्व करेंगे. तो पहला पार्ट में बोला है द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, तो इस पार्ट के लिए टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो हमको वेलोसिटी निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो u का वैल्यू दिया है 25 प्लस a है माइनस में -0.5 और टाइम जो है इस पार्ट के लिए 10 है. तो 25 प्लस माइनस इज माइनस 0.5 इंटू 10 5 हो जाएगा. तो ये मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड मिल गया वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स. अब इसका सेकेंड पार्ट में जाओ. सेकेंड पार्ट में बोला टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट, रेस्ट में आया बोल के यहाँ पर ये v0 यूज होगा. तो अब हम इसको सेम फॉर्मूला यूज करो. v के जगह में 0 हो गया, u के जगह में सेम वैल्यू है 25 प्लस a के जगह में -0.5 और इंटू t निकालना है. तो ये -0.5t को हम इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 0.5t इक्वल्स टू 25. तो t इज इक्वल्स टू 25/0.5. तो अगर हम इससे डेसिमल को हटा दो तो ऊपर में 10 लिखो, नीचे में 5 लिखो, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है. 5 इंटू 10 50 सेकेंड्स के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा. तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल था ये. न्यूमेरिकल नंबर 9 goes like this. A car travels a distance of 100 meter with a constant acceleration and average velocity 20 meter per second. तो यहाँ ध्यान दो ये average velocity दिया है. Okay. The final velocity acquired by the car is 25 meter per second. So this becomes v. We have to find the initial velocity and the acceleration of the car. तो जो जो चीज दिया हुआ है पहले उसको लिखो. s is equals to 100 meter. Then average velocity equals to 20 मीटर पर सेकेंड और फिर जाकर के v का वैल्यू दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड. तो फर्स्ट वाला पार्ट में एवरेज वेलोसिटी को यूज करो. एवरेज वेलोसिटी यूज होगा u प्लस v/2 करके यूज होगा. तो एवरेज वेलोसिटी 20 दिया हुआ है, u निकालना है, v का वैल्यू हम लोग को 25 है /2, क्रॉस मल्टीप्लाई ये 40 हो गया, u प्लस 25. सो u का वैल्यू आ गया 40 माइनस 25 इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड. तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोग का खत्म हो गया. सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सेलरेशन निकालना है. कोई टाइम नहीं दिया है तो एक ही फॉर्मूला है विदाउट टाइम वाला, विच इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. v का वैल्यू 25 है, u का वैल्यू 15 है प्लस 2 इंटू a और s का वैल्यू था 100. तो ये हो गया 625, ये होगा 15 का स्क्वायर 225, इधर आके माइनस कर दो उसको एंड इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू 100. a माइनस होके 400 आएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 आएगा इक्वल्स टू a. तो a सॉल्व करके देख लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा.
इस तरह से न्यूमेरिकल बन गया। ध्यान देने का है एवरेज वेलोसिटी किस तरह से यूज करके u या v निकालेगा। तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या बोल रहा है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ बस द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द बस टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप। मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, रिटार्डेशन है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो हम लोगों को बोला है इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए और फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम। तो पहले गिवन पार्ट को लिखो। तो a का वैल्यू जो दिया है वो हो जाएगा 25/100 मीटर पर सेकेंड। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था तो कन्वर्ट करना था। टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड और स्टॉप हो गया, मतलब v का वैल्यू 0 है। तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पूछा है तो u आना है, टाइम दिया है और v का वैल्यू 0 है तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो v के जगह में 0 हो गया, u हम लोग को निकालना है, प्लस a का वैल्यू जो है इसको अभी हम लिख रहे हैं माइनस में क्योंकि रिटार्डेशन था तो यहाँ पर -25/100 हो गया और इनटू टाइम दिया हुआ है 20। ठीक है, तो 20 को 100 से काटो 5 हो गया और 25 कटेगा 5, तो इसका मतलब हो गया 0 इज इक्वल्स टू u माइनस 5। सो u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये पहला पार्ट का सोल्यूशन हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हम लोग यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया s, u के जगह में 5, t के जगह में टाइम दिया हुआ है 20 प्लस हाफ, a का वैल्यू दिया हुआ था -25/100 और t जो था वैल्यू था 20, तो 20 इंटू 20 लिखेंगे। अब यहाँ जो कैलकुलेशन हो रहा है दोनों 0 कैंसिल आउट हो गया। ओके, ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर आ रहा है 100 और -25 इंटू 2 हो जाएगा 50, तो ये निकल गया 50 मीटर। तो ये सेकेंड पार्ट का भी न्यूमेरिकल बन गया। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब 11 को फॉलो करो, क्या बोल रहा है, बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u0 है, विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल्स 270 मीटर इन 3 सेकेंड्स। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो स्टार्ट के बाद 10 सेकेंड्स के बाद क्या है, तो ये 270 मीटर ट्रैवल कर रहा है 3 सेकेंड्स में और रेस्ट से शुरू हो रहा है। तो u का वैल्यू 0 है, s है 270 मीटर और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। ठीक है, तो अभी हम लोग s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज करके वहां से a निकालेंगे। क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s का वैल्यू है 270 इज इक्वल्स टू, रेस्ट में बोला था तो 0 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू नहीं पता है और ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 270, ये तो 0 हो गया, a नंबर्स इधर आएगा तो इंटू 2 लेके आओ और ये 9 यहाँ पर नीचे आ गया इक्वल्स टू a। तो 9 30 जा कट गया, a का वैल्यू मिलता है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को फाइंड करने के लिए बचा हुआ है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 10 सेकेंड। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT यूज करो, u तो 0 था, प्लस a का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं 60 और टाइम दिया हुआ है इसके लिए 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स, तो ये हो गया 600 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर द 10 सेकेंड। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हो गया है। लेट्स टेक अ लुक एट न्यूमेरिकल नंबर 12. It goes like this: a body is moving with a constant acceleration, so acceleration is not changing, travels a distance of 3 meter and 8 meter respectively in 1 second and 2 second. इसका मतलब है 1 सेकेंड में वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 3 मीटर और 2 सेकेंड्स में ट्रैवल करता है 8 मीटर। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो देखो क्या क्या चीज में यहाँ पर रिलेशनशिप है।
डिस्टेंस, टाइम, यू और ए पे। तो ये फॉर्मूला, ये सब चीज रिलेट करके फॉर्मूला आता है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहला कंडीशन लेंगे, एस दिया हुआ है 3, यू निकालना है और टाइम दिया है 1 प्लस हाफ इंटू ए नहीं पता है और टाइम है 1 का स्क्वायर। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, यहाँ 2 डिनोमिनेटर में, तो सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 6 हो गया, u मल्टीप्लाई होगा 2 से 2u हो गया, प्लस ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 है तो सिर्फ a लिखाएगा। ये बन गया मेरे लिए इक्वेशन 1। इसी तरह से सेकंड वाला कंडीशन लेके इक्वेशन 2 बनाओ। सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस है, सेम फॉर्मूला यूज होगा। हम और एक बार लिख ही दे रहे हैं फॉर्मूला को। तो s के जगह में 8 है, u नहीं पता है, अब टाइम है 2 सेकेंड्स तो 2 हुआ, प्लस a नहीं पता है तो इंटू a इंटू टाइम अभी 2 है, 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8, ये हो गया 2u प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 2 से डिवाइड होगा तो 2a बचेगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और u और a का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको लिखते हैं पहले यहाँ पर 2u प्लस a इज इक्वल्स टू 6 और फिर 2u प्लस 2a इक्वल्स टू 8। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों u सेम है 2 से, एडिशन में तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस हो गया, प्लस साइन माइनस हो गया, प्लस साइन माइनस हो गया। तो यहाँ से 2u कैंसिल आउट हो जा रहा है, a माइनस 2a माइनस a देगा और 6 माइनस 8 देगा -2, दोनों का माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम लोग का सेकेंड वाला पार्ट निकल गया। फर्स्ट वाला पार्ट निकालने के लिए हम यूज करेंगे दोनों में से कोई भी इक्वेशन। तो हम यहाँ लिख रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या था, 2u था, 2u लिखे, प्लस a था, a का वैल्यू यहाँ पर 2 आया और इक्वल टू 6 था तो 6 को लिखे। तो 2u इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, u इज इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों आंसर यहाँ पर हो गया सेकेंड वाला पार्ट का आंसर, ये वाला हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। इस तरह से न्यूमेरिकल बन गया। तो इस न्यूमेरिकल में साइमल्टेनियस इक्वेशन जो मैथ से पढ़ते हैं उसका भी यूज हुआ है। नाउ टू न्यूमेरिकल नंबर 13। अ कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। अभी पहला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूमेरिकल में। ये यहाँ पर बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता है। ओके, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 10 सेकेंड। फिर ब्रेक्स अप्लाई करता है और फर्दर 10 सेकेंड्स में वो आके रुक जाता है। The distance which the car travels before the brakes are applied. Before the brakes are applied, car was traveling at uniform velocity. So again I repeat, to find the distance, you will not apply any formula related to acceleration. Then second one, the retardation we have to find because brakes are being applied for 10 seconds. So it will retard and it is coming to a stop. Okay. The distance traveled by the car after applying the brakes, and what is the distance that car is traveling after applying the brakes. So let us start with the first part. So first part, the velocity is given there. Okay, again I am repeating, because it is uniform velocity, acceleration formula cannot be used. So if I have to find the distance there, so I will apply here speed into time. This formula is known to all. Speed is 25 meter per second, time is 5, so I get it as 125 meter. That completes the first part. Second part में retardation पूछा है। जो ये 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, अब ब्रेक्स अप्लाई करता है तो u हो जाता है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिटार्डेड एंड कम्स टू रेस्ट बोला है, मतलब v इज इक्वल्स टू 0 हो गया है और टाइम है 10 सेकेंड्स। अब हम लोग को निकालने क्या बोला, रिटार्डेशन बोला है, तो हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस
80, v 0 है, u है 25 प्लस a हमको निकालना पड़ेगा और t है 10। तो इसको हम 25 को इधर लेके आ जाएंगे, -25 इक्वल्स टू 10a, तो a इक्वल्स टू -25/10 इक्वल्स टू -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन याद रखो क्वेश्चन ने पूछा है रिटार्डेशन, तो इसमें आंसर नहीं छोड़ना है, रिटार्डेशन को लिखना है। अब रिटार्डेशन लिखेगा तो वैल्यू में अब नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सेकेंड वाला पार्ट हो गया। अब आ जाओ थर्ड वाला पार्ट में, जिसमें बोल रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो ब्रेक्स अप्लाई करके 10 सेकेंड्स चला था, 10 सेकेंड्स के लिए हमको निकालना है डिस्टेंस कितना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एस निकालना है, यू जो था 25 है, इंटू 10 प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू पुट करना है तो नेगेटिव में पुट करना होगा, और इंटू टाइम का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो एस इज इक्वल्स टू 250 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 22.5 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 250/2, ये रिड्यूस हो जाएगा 250, इसको रिड्यूस करो 250 को 2 से 125 आएगा, तो ये मिल गया 125 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। नाउ लेट अस सी न्यूमेरिकल नंबर 40 which is a very important one. A spacecraft flying in a straight course with a velocity of 75 km per second fires its rocket motors for 6 seconds. तो ये याद रखना है कि रॉकेट मोटर्स एक्ट कर रहा है सिर्फ 6 सेकेंड्स के लिए, और रॉकेट मोटर्स जब एक्ट कर रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन है। एट द एंड ऑफ दिस टाइम मतलब 6 सेकेंड्स के बाद इट्स स्पीड इज 120 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये u हो गया और ये v हो गया फॉर दैट 6 सेकेंड टाइम इंटरवल। फाइंड द स्पेसक्राफ्ट एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन द मोटर्स वेर फायरिंग। तो एक्सेलरेशन निकालना है, और फिर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्पेसक्राफ्ट इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स में दो पार्ट है, 6 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन है और बाद में एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला पार्ट होगा। ओके, where started the motors having been in action for 6 seconds। तो अलग से मेंशन भी कर दिया कि इस मोटर सिर्फ 6 सेकेंड्स तक एक्ट कर रहा है, मतलब 6 सेकेंड तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन वहां पर नहीं है। तो पहला पार्ट के लिए अभी हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया है u का वैल्यू, v का वैल्यू दिया हुआ है 120 और टाइम दिया हुआ है इसमें 6 सेकेंड्स। तो हम लोग इससे फर्स्ट वाला पार्ट निकल जाएगा, सिंपल वाला फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 से निकाल लो। ये हो गया 120, ये हो गया 75 प्लस a हमको निकालना है और t है 6, तो 120 माइनस 75 इज इक्वल्स टू 6a, तो a इज इक्वल्स टू माइनस करो 45 आएगा बाई 6, 3 2 जा 3 15 जा 15/2 आ जाएगा 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन पार्ट निकल गया। अब जो डिस्टेंस निकालना है 10 सेकेंड्स के लिए हम रिपीट कर रहे हैं, उसमें दो पार्ट है, पहला 6 सेकेंड एक्सेलरेटेड मोशन है और नेक्स्ट 10 - 6 4 सेकेंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। तो उसको हम लोग को पार्ट बाय पार्ट निकालना होगा। तो हम पहले S1 जो लिख रहा है वो सिर्फ 6 सेकेंड्स के लिए है, जो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। तो u है जो स्टार्टिंग वाला था 75 इंटू 6 करेंगे प्लस हाफ इंटू a निकला हम लोग का 7.5 इंटू t है 6, तो 6 इंटू 6 क्योंकि t स्क्वायर है, इसको कैंसिल आउट कर दो 3 टाइम्स, 75 6 जा 6 5 जा 33 कैरी 42 और 3 हो गया 450 प्लस यहाँ पर भी 75 इंटू 6 है मतलब 450 आता, लेकिन 7.5 है तो सिर्फ 45 आएगा, 45 इंटू 3 हो जाएगा 135, इसको ऐड कर दो तो 585 किलोमीटर आ गया पहला पार्ट 6 सेकेंड तक जब तक एक्सेलरेटेड मोशन था। अब 10 सेकेंड में से 4 सेकेंड्स बचा है, S2 इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे यहाँ पर स्पीड इंटू टाइम करके,
क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, स्पीड कितना अटेन कर लिया था वो 120 कर लिया था, तो 120 इंटू 4 हो गया 480 किलोमीटर। अब जो टोटल डिस्टेंस है वो आएगा S1 प्लस S2 करके, इसका मतलब 585 प्लस 480, तो 5 आ गया, 8 8 16, 5 4 9 और 1 1065 किलोमीटर। तो ये न्यूमेरिकल सही, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। समझने के लिए कब यूज करना है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और कब यूज होगा स्पीड इनटू टाइम। एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसको यूज करो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसको यूज करो। तो लेट अस टेक अ लुक एट न्यूमेरिकल नंबर 15 व्हिच से द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u0 है, and accelerates uniformly at the rate of 2 meter per second square for 10 seconds. It means for 10 seconds it is having acceleration. It then maintains a constant speed for 200 seconds. Constant speed for 200 seconds मतलब 10 सेकेंड में जो वो वेलोसिटी गेन करेगा उसी वेलोसिटी से वो 200 सेकेंड्स तक जाएगा। The brakes are then applied and the train is uniformly retarded. अब brakes apply करता है, retardation होता है and comes to rest in 50 seconds. तो पूछा है 4 different things: maximum velocity reached, the retardation in the last 50 seconds, the total distance traveled, वो 3 पार्ट में होगा, accelerated part, constant velocity part और retardation part, तीनों का अलग अलग डिस्टेंस ऐड करके निकलेगा। और फिर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, जो टोटल डिस्टेंस मिलेगा उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, तो वो आंसर आ जाएगा। तो चलो पहला वाला पार्ट को देखते हैं। तो रेस्ट से शुरू हो रहा है और वेलोसिटी निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो हम सीधा यूज करते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। u0 है, A2 है और टाइम है 10, तो कैलकुलेट करके 20 मीटर पर सेकेंड, पहला वाला का आंसर बहुत ही डायरेक्ट था। अब रिटार्डेशन इन द लास्ट 50 सेकेंड, तो लास्ट 50 सेकेंड्स में ये जो u आया था, v आया था 20, वो लास्ट 50 सेकेंड्स के लिए u बन गया, क्योंकि वहीं से ओला स्पीड से अब उसका ब्रेक लग करके स्पीड घटते घटते 0 जाएगा। और बोला हुआ है कि v है 0 और टाइम दिया है 50 सेकेंड्स। तो अभी हम लोग रिटार्डेशन निकालने के लिए जाएंगे। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, v 0 है, u 20 है, a निकालना है और टाइम है 50, तो -20 इक्वल्स टू 50a, 50a, तो इसका मतलब a हो गया -20 बाई 50, सो दैट विल गिव यू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको रिटार्डेशन पूछा है, तो रिटार्डेशन वर्ड को यहाँ पर यूज करो। तो अब जो वैल्यू लिखेगा वो बिना माइनस साइन का लिखेगा, ये आ गया। Now coming to the third part of it, which is telling about the total distance traveled. So as I told you, we split it up into 3 parts and do it. First the acceleration part, then the constant speed part, and then the retardation part. So let us see the third part. So first part is regarding the accelerated motion part. So formula used will be ut plus half AT square. So S1 will be u for us over here was 0 into time is 10 plus half into a value for this part was this 2 and time is 10. So this part becomes 0, 2 will get cancelled, 10 square is 100 meter is the first part distance. For the second part it is moving with a constant speed for 200 seconds, and the constant speed was the speed which it got over here, okay, as we have calculated the speed for it which came as, क्या हो रहा है यार, okay, we had calculated that speed here which came as 20 meter per second. Okay, so this part 20 will be used and this went on for 200 seconds. So that gives us 4000 meter. Now comes the retardation part. So it is an accelerated motion in the third part. So I will use ut plus half AT square.
So S3 equals to U over here was that 20 meter per second, which with it was moving for 200 second, 20. Time given for retardation is 50. Half into retardation, we had got it as minus 0.4 into 50 square. So this will give us 1000. Plus into minus is minus. 2 will cancel 0.4 to give you 0.2 into 50 into 50. So that comes as 1000 minus 0.2 into 50 you will get it as 10, and here 500. So you get it here as 500 meter. So now for the third part, the total distance will be the sum of all these three parts, which is 100 first. In the second part, you saw it was 4000 and the third part was 500. So you get it as 4600 meter as the answer for the third part. Now coming to the fourth part, average velocity is asked. So that is total displacement by the total time. Now in this case, because it was moving in a straight line, the distance and the displacement is the same. So 4600, and the time was 10 second, 200, 210 seconds, and 50, 260. Divide it and you get the answer for the average velocity. With this, we have come to the end of the numerical of this complete chapter. You have seen the first two parts in the previous two videos, and this is the third part. We are ending it over here. If you have still not subscribed for my channel, do it quickly now, because I will be coming up with the numericals of that is the fourth chapter, which deals with the Newton's laws of motion. Thank you for watching this video.